Hello everyone, greetings to all. Welcome back in our English period. We have finished the first lesson of grammar. Yes or no? Learn किया आपने? Yes? Very good. So today we are going to start lesson number 2. Prepositions. First, take out your textbooks and open the lesson number 2. Prepositions. Have you done it? Yes? Very good. So, let's start. फर्स्ट लुक एट द पिक्चर्स. पहले तो क्या करना है आपको पिक्चर्स देखने हैं और कैट की पोजीशन देखनी है. ओके, स्पॉट द कैट इन द पिक्चर. फर्स्ट, द कैट इज ऑन द चेयर. वेयर द कैट इज सिटिंग? ऑन द चेयर. ऑन इज द preposition. द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर. द कैट इज अंडर द टेबल. अगर कैट टेबल के ऊपर होती तो क्या बोलते हम लोग? द कैट इज ऑन द टेबल. लेकिन कैट कहाँ पे है अभी? द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. नेक्स्ट, द कैट इज इन द बॉक्स. हियर इन इज प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, द कैट इज बिहाइंड द स्टूल. यहाँ पे कैट जो है वो स्टूल के ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, स्टूल के बैक साइड में खड़ी है. सो द कैट इज बिहाइंड द स्टूल. The cat is in front of the table. The cat is over the fence. The cat walk across the road. The cat jump into the pool. The cat is beside the dustbin. Okay. Now, the words in, under, on, behind, over, in front of, beside, into, across tell us where something take place. And these are the prepositions: in, under, on, behind, over, in front of, beside, into, across. These are the prepositions. Okay, prepositions are words that tell us more about people and things. Prepositions are words that tell us more about people and thing. Prepositions जो है ना वो हमें किसी थिंग के और पीपल के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. ओके, अ प्रीपोजिशन कनेक्ट और रिलेट द नाउन टू द रेस्ट ऑफ सेंटेंस. प्रीपोजिशन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प इनटू द पूल. द कैट जम्प इनटू द पूल. हियर इनटू इज द प्रीपोजिशन एंड कैट इज द नाउन. हु जम्प इनटू द पूल? हु जम्प इनटू द पूल? द कैट. कैट इज द नाउन. Cat jump into the pool. Where did the cat jump? Where did the cat jump? Into the pool. Into is the preposition. Into join the rest of sentence. Here into join the rest of sentence. Okay. The word into explains the position of cat in the relation to the pool. So into is the preposition. Prepositions tell us where person, place, animal and thing. Prepositions tell us where person, place, animal or thing. Prepositions, position, words. Look here. What is the ball? What is the ball? यहाँ पे बॉल अलग अलग सिचुएशन में है. कभी बॉक्स के अंदर है, कभी टेबल पे है, कभी टेबल के नीचे है. सो दिस आर द पोजिशन ऑफ दिस बॉल. ओके, वेयर इज द बॉल? द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स. द बॉल इज ऑन द टेबल. अलग अलग जगह पे है ना बॉल. सो द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स. द बॉल इज ऑन द टेबल. इन, ऑन, these are the prepositions. The ball is under the table. Under is also preposition. Next, the ball is near the table. Near the table. And near is preposition. Ball box के अंदर है इसलिए हमने क्या यूज़ किया? We use here in because the ball is in the box. Next, the ball is on the table. Why? Because the ball is on the table, not in the table or under the table. Next, the ball is under the table and the ball is near the table. Table के पास है ना लास्ट वाला बॉल. So here we use the ball is near the table. Here are some examples. Okay. First, the eggs are in the nest. The eggs are in the nest. Here the eggs are in the nest. In is
preposition. Okay, nest के अंदर है ना eggs या फिर बाहर है? नहीं. So the eggs are in the nest. Next examples. The apples are in the basket. The apples are in the basket. Apples basket में है ना, इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? बास्केट के अंदर है ना एप्पल. So we use here in. The apples are in the basket. Okay. Next, the clock is on the wall. The clock is on the wall. अगर क्लॉक नीचे रखा होता तो अलग आता, लेकिन यहाँ पे क्लॉक जो है वो वॉल को हैंगिंग किया है. सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? द क्लॉक इज ऑन द वॉल, क्योंकि वो वॉल के ऊपर है. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर. चेयर के बीच में बैठा है क्या? वो नीचे जाके, अगर नीचे जाके बैठता तो क्या बोलते हैं हम लोग? द बॉय इज अंडर द चेयर. लेकिन यहाँ पे बॉय कहाँ पे बैठा है? नाउ टेल मी वेयर द बॉय इज सिटिंग. द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर. हियर ऑन इज द preposition. नेक्स्ट, द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर, क्योंकि वो चेयर पे बैठा था. अभी यहाँ पे जो बॉय है वो ट्री के ऊपर बैठा है क्या? जैसे कि वो चेयर के ऊपर बैठा था, ये ट्री के ऊपर है क्या? नहीं, ये ट्री के नीचे बैठा है. सो दैट्स वाई द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. अंडर द ट्री. हियर अंडर इज द preposition. नेक्स्ट, द रैबिट इज अंडर द ट्री. द कार इज पार्क नियर द हाउस. कार कहाँ पे? घर के अंदर पार्क है. द कार इज पार्क इन द हाउस. ऐसे बोल सकते हैं हम लोग? नहीं. कार कहाँ पे पार्क होती है? हमारे घर के पास में पार्क होती है ना. सो द कार इज पार्क नियर द हाउस. द पेन इज नियर द बुक. ओके. द कैट इज जंपिंग ओवर द चेयर. द कैट इज जंपिंग ओवर द चेयर. नाउ हियर इज द एक्सरसाइज. अभी हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे. इन कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑन कहाँ पे करते हैं, एट कहाँ पे करते हैं. अभी हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. ओके. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ एट, ऑन और इन. हियर एट, ऑन और इन, दीज आर द प्रीपोजिशंस. हमें प्रीपोजिशंस प्रॉपरली यूज़ करने हैं. ओके. माई फादर इज सिटिंग डैश डैश द टेबल. एट द टेबल, ऑन द टेबल और इन द टेबल. टेल मी फास्ट. माई फादर इज सिटिंग ऑन द टेबल. वेरी गुड. टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर ही बैठते हैं ना हम लोग, या उसके नीचे बैठते हैं? नहीं. सो माई फादर इज सिटिंग ऑन द चेयर. द चाइल्ड इज स्टैंडिंग डैश डैश अ कॉर्नर. एट अ कॉर्नर, ऑन अ कॉर्नर और इन अ कॉर्नर. द चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. आई एम वेटिंग डैश डैश द बस स्टॉप. आई एम वेटिंग डैश डैश द बस स्टॉप. We use at for the preposition of place. अगर place का हुआ तो हम at यूज़ करते हैं. ओके. सो I am waiting at the bus stop. The dog is sitting dash dash the sofa. The dog is sitting. सोफे के नीचे बैठ सकता है डॉग? Yes? No. So the dog is sitting on the sofa. There is a boat dash dash the lake. There is a boat on the lake. On the lake, in the lake or at the lake. Tell me fast, which is the correct option? There is a boat dash dash the lake. In the lake. There is a boat in the lake. Okay. Next, underline the prepositions in the following sentences. हमें नीचे कुछ sentences दिए गए हैं. ओके. क्या करना है हमें इसका? इसमें जो prepositions है उन्हें आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है. ओके. नाउ टेल मी फास्ट, one preposition. ओके. First, the boat went under the bridge. The boat went under the bridge. Which is the preposition here? Under. Very good. So underline under. Next, you can sit beside the bed. You can sit beside the bed. Which is the correct preposition here? Beside. Next, we will have dinner at 8 p.m. Which is the preposition? Dinner, have? No. So at. Very good. Next, do not go into that old house. Do not go into that old house. Into. Very good. Next, we live in Delhi. Which is the preposition?
in Delhi. Okay. In is the preposition. Next, we are playing cricket on Saturday. Here, on is the preposition. Next, he is hiding behind the door. He is hiding behind the door. Which is the preposition here? Behind. Next, the horse ran across the road. The horse ran across the road. Which is the preposition here? Across. Very good. क्या करना है आपको? इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. ओके, अंडरलाइन दी प्रीपोजिशन वर्ड्स. नेक्स्ट, टिक द करेक्ट सेंटेंस. हियर पिक्चर्स आर गिवन. ओके, एंड 3 sentences अबाउट दैट पिक्चर. सो व्हाट वी डू हियर, क्या करना है हमें यहाँ पे? आइडेंटिफाई द प्रॉपर सेंटेंस. ओके, रिलेटेड टू दिस पिक्चर. पिक्चर्स को रिलेटेड सेंटेंस, प्रॉपर पिक्चर्स को रिलेटेड सेंटेंस जो करेक्ट है उन्हें टिक करना है. ओके, टिक टू द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, द मिल्क इज इन द बॉटल. आपको बॉटल दिख रही है ना आपके टेक्स्ट बुक में? यस. सो मिल्क इज इन द बॉटल, मिल्क इज ऑन द बॉटल एंड मिल्क इज एट द बॉटल. विच इज द करेक्ट ऑप्शन और विच इज द करेक्ट सेंटेंस? करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें? मिल्क इज़ ऑन द बॉटल. बॉटल के ऊपर होता है मिल्क. मिल्क इज़ ऑन द बॉटल. ऑन मतलब कि उसके ऊपर होना. मिल्क इज़ ऑन द बॉटल इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और मिल्क इज़ एट द बॉटल, करेक्ट आंसर? नो. सो विच इज़ द करेक्ट? मिल्क इज़ इन द बॉटल. वेरी गुड. नेक्स्ट, एग्स आर इन द बास्केट, एग्स आर अंडर द बास्केट एंड एग्स आर ऑन द बास्केट. टेल मी फर्स्ट विच इज़ द करेक्ट आंसर? Eggs are in the basket. Very good. Next, a TV is in the wall, a TV is on the wall, a TV is beside the wall. Watch कहाँ पे थी? और the watch is wall, the watch is hanging on the wall. Yes, no? So on the wall. Here a TV is in the wall is the correct answer. TV is in the wall correct answer आएगा? No. So which is the correct? A TV is on the wall. Okay. Next, a dog is in the rug, a dog is in the rug, a dog is in front of the rug, a dog is on the rug. Which is the correct option? Tell me fast. The dog is on the rug. Very good. The dog is on the rug is the correct option. Next, क्या दिख रहा है आपको अगले पिक्चर में? क्या है? केक. वेरी गुड. आपको पसंद है केक? यस, नाइस. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट रीड द सेंटेंसेस. ओके, अ केक इज इन द ओवन, अ केक इज अंडर द ओवन एंड द केक इज ऑन द ओवन. ओवन के ऊपर है केक. द केक इज ऑन द ओवन. यस और नो? टेल मी फास्ट. ऑन द ओवन? यस और नो? No, the cake is under the oven or the cake is in the oven. Which is the correct option? The cake is in the oven. Okay. समझ आया सबको? Yes. क्या करना है अभी हमें? पूरा लेसन रीड करना है और उसे अंडरस्टैंड करना है. ओके, प्रीपोजिशंस आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हें लर्न करना है. ओके, टिल देन बाय बाय. हैव अ नाइस डे.